All right. Very good morning, everyone. Welcome back to school after 8 months. And class 10th, we are going to discuss the various concepts involved in your chapters. Today we have taken the chapter life processes. We'll be continuing with this because actually this is a mixture of 4 chapters. So slow and steady, we'll be revising it. Or if you have any doubts in anything, we'll be discussing that. Alright. Should I remove it? No, wear it. Alright. So, there are various activities, and autotrophic nutrition means where the sunlight is being used for photosynthesis. What is photosynthesis? Conversion of chemical energy into light energy into chemical energy. Thank you very much. Okay, so light energy is being converted into chemical energy, but this fact has been proven by various experiments. है ना? That's the beauty of this subject, that anything that you read, any rule, any law, any fact that you study has been proven by several experiments, and only then it is accepted by the world, and only then it is incorporated into your books. So first what we are going to do is that chlorophyll is must for photosynthesis, right? Chlorophyll is must for photosynthesis. Okay, now how will we prove it? We will take a variegated leaf. There are few things which you don't understand at times, and let me start fresh. Okay, so first point is that chlorophyll is must for photosynthesis. Okay, right. How will we prove it? We will take the variegated leaves. Now this is a variegated leaf, right? Variegated leaf का क्या मतलब हुआ? Now the yellow part of the leaf does not have chlorophyll. Only it is the green part which has chlorophyll, right? This one has more chlorophyll, less of the white or creamish part. So this one will definitely perform more photosynthesis. This variegated leaf has less of chlorophyll, it will perform less photosynthesis, right? So what will we do? We will take this plant, and first of all first step is always de-starch it. What do you mean by de-starch? De-starch it means you will keep it in the dark room for 3 days. So whatever starch it has stored, that has been used by the plant for survival. Is that clear? Any doubts? No. Okay. De-starching is very important, because what are we going to prove? That chlorophyll is must for photosynthesis. We know that the end product of photosynthesis is क्या है end product? भाई हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, we take water in the presence of sunlight and chlorophyll. क्या बनता है? C6H12O6 H2O प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, बेसिक इक्वेशन ये है. These are the 4 ingredients and these are the 2 products. ये थंब रूल है इस इक्वेशन का. ठीक है, व्हाट आर दी प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स? ये 4 कंडीशंस होनी चाहिए. एक भी कंडीशन अगर नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. ठीक है, हमको ये पता करना है फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनता है, स्टार्च टेस्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग? हमने डिस्टार्च किया. सेकेंड स्टेप क्या किया? हमने इसको
धूप में रखा 4 hours, ठीक है. We kept it in the sunlight for 4 hours and photosynthesis is done, right? Now what we are going to do is we are going to boil it into double boiler or water bath. दोनों की मीनिंग सेम है. If I am, क्या कलर आ रहा है? अगर मैं कह रही हूँ डबल बॉयलर और if I am saying water bath, both meanings are water bath. Both the meanings are just the same. कैसे? क्या होता है इसमें? बीकर है, ठीक है. नीचे हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है. और इससे फ्लेम है, इसको हम हीट कर रहे हैं, ठीक है. इस वाटर बाथ में हमारे पास क्या है? पानी है, ठीक है. What are we going to do? We are going to put a boiling tube into this, and this boiling tube is containing alcohol, ठीक है. क्योंकि अल्कोहल हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, इसलिए हम लोग उसको डायरेक्ट हीट पे नहीं रखते, नहीं तो ब्लास्ट कर जाएगा. अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल, इसलिए हम लोगों ने बीकर लिया, बीकर में पानी लिया. वी आर हीटिंग दैट वाटर एंड देन वी टुक अ टेस्ट ट्यूब. उस टेस्ट ट्यूब के अंदर में हम लोगों ने एक वैरीगेटेड लीफ डाल दी. इस हीट से ये पानी गर्म हुआ और इस पानी की हीट से ये अल्कोहल गर्म हुआ. डायरेक्ट हीट हम नहीं दे रहे हैं, तो अल्कोहल का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ठीक है. इस अल्कोहल ने क्या किया कि जो भी हीट से वो वार्म हुआ, इस अल्कोहल ने जो क्लोरोफिल का केमिकल बॉन्ड्स है वो तोड़ दिया, ठीक है. तो हुआ क्या, पूरी की पूरी ये क्लोरोफिल डिसॉल्व कर गई, ठीक है. अब हमारी पूरी की पूरी लीफ जो है वो येलो या क्रीमिश कलर, वाइटिश क्रीमिश हो जाती है. अच्छा, बिफोर पुटिंग इट इनटू डबल बॉयलर और वाटर बाथ, हमने इस लीफ के एरियाज मार्क कर लिए थे दूसरे पेपर पे कि कहाँ कहाँ पर ग्रीन है, कहाँ पर क्रीम है, ठीक है. तो हमें पता था. अब जो हमारे पास लीफ है वो क्या है? वो क्रीम कलर की है. आफ्टर दिस वी हैव अ क्रीम कलर लीफ, राइट. इस वैरीगेटेड लीफ जो कि क्रीम कलर की है, वी विल पुट आयोडीन ड्रॉप्स. फॉर स्टार्च टेस्ट इट इज ऑलवेज आयोडीन ड्रॉप, नथिंग एल्स, नो अदर केमिकल. गांठ बांध लो इसको, ठीक है. फॉर स्टार्च टेस्ट इट इज ऑलवेज 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 आयोडीन ड्रॉप्स. क्यों? क्योंकि आयोडीन ड्रॉप्स जो होती हैं वो जहां पर भी स्टार्च होता है ब्लैकिश ब्लूइश कलर डाल उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. और अगर स्टार्च नहीं है तो वो लाइट ब्राउन कलर रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा. सो व्हाट हैपेंड when we put iodine on this cream color leaf, certain area became dark in color, ठीक है. So the area which was green initially, only that area became bluish blackish in color, proving that chlorophyll is must for photosynthesis. मुझे पता है नहीं क्लियर हुआ है, सो नाउ यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, डाउट्स. बताओ विकास. yes. वो डिस्चार्ज के बाद क्या हुआ? कौन सा डिस्चार्ज? वो पहला स्टेप डिस्चार्ज. डिस्चार्ज के बाद हमने फोटोसिंथेसिस कराई और फोटोसिंथेसिस के बाद हमने इसको डिस्कलर किया डबल वाटर बाथ में या डबल बॉयलर में, मतलब पानी से गर्म किया, अल्कोहल में गर्म किया, तो क्लोरोफिल का जो बॉन्ड्स थे वो टूट गए. तो अब क्लोरोफिल अपने कंपोनेंट्स में आ गया और पूरी की पूरी लीफ जो थी वो क्रीम कलर की हो गई.
लेकिन हम लोगों ने क्या स्मार्टनेस दिखाई थी कि हमने पहले उसके ग्रीन वाले एरियाज मार्क करके रखे थे पेपर पे। जब हमने स्टार्च टेस्ट किया तो जहां पे क्लोरोफिल था वहीं पे स्टार्च बना होगा। हाँ, यस और नो, है ना? जहां पे क्लोरोफिल था वहीं पे स्टार्च बना था। तो जहां पे क्लोरोफिल था वहीं पे स्टार्च था, वहीं पे आयोडीन का टेस्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया मतलब क्या हो गया? Something is wrong. Okay. पॉजिटिव आया, ठीक है। सो व्हाट डज दिस प्रूव? दैट chlorophyll is must for photosynthesis। जहां पर पहले क्लोरोफिल नहीं था वहां पे स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया, देयर वाज नो चेंज इन द कलर, द लीफ रिमेन क्रीमिश कलर। So this proves that chlorophyll is important for or must for photosynthesis. Is that clear? Shall we move? Another activity given in your... Yes, ma'am. Okay, is it clear to everyone? The other side and the bridge, Trans Ganga, Trans Yamuna. Okay, उधर सबको समझ में आया? Is it clear? Yes, ma'am. आकाश? Yes, ma'am. मंजरी? चलो जोफिया. Alright, next activity is to prove that carbon dioxide is must for photosynthesis. Now I have taken 2 bell jars और इसको हमने सील कर दिया। I have taken 2 plants and ये नहीं होगा? Okay. मैंने किस चीज का टेस्ट है? To prove that carbon dioxide is must for photosynthesis. आपके 4 बेसिक इंग्रेडिएंट्स है ना? क्या है बोलो? CO2, H2O and sunlight and chlorine. Chloro. ठीक है। We took 2 plants and we have already de-starched them. क्या किया हमने? उनको ऑलरेडी de-starch किया हुआ है। एक के जार में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, ठीक है। Now what are the conditions? एयर टाइट है, क्यों? ताकि कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सके, जो गैस अंदर है बस वही गैस अंदर है, ठीक है। ये ग्लास जार है या इसको हम बेल जार भी कहते हैं। ग्लास जार है, इसका मतलब है सनलाइट आ जा रही है, ठीक है। ग्रीन कलर की पत्तियां हैं, पानी है क्योंकि ये पौधा जिंदा है। तो 3 कंडीशंस 4 कंडीशंस हमने सारी दी। ये प्लांट हमने डी स्टार्च पहले ही कर दिए थे क्योंकि हमें टेस्ट करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक हमने बदमाशी क्या करी, हमने बी जार में चुपचाप से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। व्हाट डज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डू? It absorbs the oxygen present in the atmosphere. कार्बन डाइऑक्साइड। Oh, sorry, carbon dioxide. या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, इट हैज एफिनिटी विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस बेल जार के अंदर में ये तो एयर टाइट है, अब हमारा गैसेस एक्सचेंज हो नहीं रहा है ना। तो इस बेल जार के अंदर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है। अब इसको हमने पूरा दोनों अपैरेटस सेटअप रख दिए सनलाइट में, करो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। Then we plucked out 1 leaf from here and 1 leaf from here, B and A, ठीक है। And we perform iodine test on these 2. Who do you think will give? Raise your hand. और उधर से भी आप बता सकते हो। Who do you think will give a positive test for iodine starch test? विकास? नहीं? सोचो,
हमारे 4 कंडीशन है फोटोसिंथेसिस की। एक कंडीशन ए जार में, वेरी गुड, हुज दिस? आकाश, ओके। A jar will give positive test for starch, the leaf will become bluish, purplish, blackish. ज़्यादा डाल देंगे तो ब्लैक हो जाता है, नहीं तो पर्पलिश रहता है, ठीक है। एंड दिस विल, सो दिस इज अ पॉजिटिव टेस्ट स्टार्च का, और यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। मतलब इन्होंने फोटोसिंथेसिस करी, इन्होंने फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए, जबकि इनको सनलाइट थी, जबकि ग्रीन क्लोरोफिल था, तब भी ये फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर पाए? बिकॉज ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ दिस ग्लास वाज absorbed by KOH, potassium hydroxide, right? So this proves that carbon dioxide is also very important for the process of photosynthesis. Is that clear? Yes, ma'am. Any doubts about it? Any doubts about it? Huh? Pakka? No, ma'am. No, ma'am. So there could be questions based on this. Now I'll tell you the opening and closing of the stomatal pores, right? जो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 kidney shaped cells are there. What do we call them? गार्ड सेल्स। और उन गार्ड सेल्स के बीच में स्टोमेटल पोर है। उन गार्ड सेल्स के जो चारों ओर की सेल्स है, व्हाट डू वी कॉल देम? क्लोरोप्लास्ट। नो, क्लोरोप्लास्ट तो इसके अंदर होते हैं, लीव्स में, सेल्स में, लीव्स में भी नहीं, लीव्स की जो सेल्स है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। जो चारों ओर की सेल्स होती है उन्हें हम कंपेनियन सेल्स भी कह सकते हैं, उन्हें हम सब्सिडियरी भी कह सकते हैं। मैं आपको ये सारे शब्द, ओके, सब्सिडियरी सब्सिडियरी, right? We call them companion cells, we call them subsidiary cells, we call them supporting cells. So see what is happening. This is stomatal pore, right? When will it get open? When these guard cells swell. How will they swell? When they will absorb water. Yes or no? Yes. They will swell only when they will absorb water. कहाँ से आएगा वाटर? जो चारों ओर की सब्सिडियरी या सपोर्टिंग सेल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी नोइंग इट, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही समझ में आ जाना चाहिए, है ना। तो जब गैसियस एक्सचेंज होना है, स्टोमेटल पोर का क्या काम है भाई? ट्रांसपिरेशन हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, यही तो काम है ना। तो जब इन्हें, अभी तो ये चिपकी हुई हैं, बंद है, आप 2 बलून लेकर ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ब्लो द एयर इन द बलून्स and you keep them, there will be space created between 2. When you remove the air from the balloon, they will shrink and the pore will be closed. Similarly, यहाँ पर ये दोनों stomatal guard cells हैं. When there is a need for gaseous exchange, they will absorb the water from the surrounding cells and swell, and the pore will be open. क्लियर है? क्लियर है? इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट टर्जिड कंडीशन. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट टर्जिड कंडीशन. टर्जिडिटी, सेल्स के अंदर जो टर्जिडिटी होती है ना, वो स्वेल्ड रहती हैं क्योंकि वो पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं. तो दैट इज अ टर्जिड कंडीशन. द स्टोमेटल पोर्स आर ओपन, द गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है. अब हम इससे ज़्यादा पानी लूज नहीं कर सकते हैं, हमारी गैसेस एक्सचेंज की ज़रूरत ख़त्म हो गई है. हम इन गार्ड सेल्स ने जो पानी लिया था वो अपनी चारों ओर की सेल्स को वापस कर दिया और ये पिचक गई और स्टोमेटल पोर क्लोज हो गया. व्हाट डू वी कॉल इट? प्लासिड कंडीशन.
सो टर्जिड एंड प्लासिड अगर क्वेश्चन में लिखा है तो आप समझ लीजिएगा कि क्या बात हो रही है, ठीक है। इफ टर्जिड एंड प्लासिड इज रिटन, you will understand what are we talking about. Is that clear? So children, this is all about the two activities, and keep asking question. These are the concepts which needs to be cleared up, and keep asking, because more you ask means more you are studying, right? Thank you very much.